ہاتھوں کو اٹھائیں اور خداوند یسوع مسیح کی طرف اپنا دھیان کریں. میں جانتی ہوں بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہو رہی ہیں, وہاں پہ انٹرنیٹ کی پرابلم ہو رہی ہے, لیکن خداوند وہاں پر آپ سب کے ساتھ اس وقت موجود ہے. آمین. خداوند اس وقت وہاں پر موجود ہے. کلام میں لکھا ہے جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں, جب ہم اس کے گیت گاتے ہیں, تو اس کا تخت آپ کے درمیان جو ہے وہ لگ جاتا ہے. آمین. سو آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنا دھیان پوری طرح خداوند کی طرف لگائیں. تھینک یو ان لوگوں کے لیے جو پھول پھینک رہے ہیں, اور اپنا پورا دھیان جو ہے اب ہم خداوند کی طرف لگائیں گے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس کی حضوری کو اس جگہ پر اپنے پاس محسوس کریں. آج ہم یہاں پر صرف ایک خاص پروگرام کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے, بلکہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں کہ خداوند ہماری زندگیوں میں کام کرے. آمین. آج ہم یہاں پر موجود ہیں کہ خداوند ہماری زندگیوں میں کام کرے, ہماری بیماریوں میں, ہمارے گھروں میں, ہماری اسکول میں, ہماری اسٹڈیز میں جو بہنیں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے, اور جو لوگ اپنے گھروں میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, خداوند آج وہاں پر موجود ہے کہ آپ سب کو دیکھے, آپ سب کی دعاؤں کو سنیں آج. تو آئیے ہم خداوند کے حضور دعا کریں. اپنے آنکھوں کو بند کریں, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, اور آج اپنی مناجاتیں, اپنی بیماریاں, اپنی مصیبتیں, اپنی اسٹرگلز, ہر چیز خداوند کے حضور لے کے آئیں. اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں دے دیں اور اس کو مانگیں اپنی زندگی میں. آئے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں, خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع ناصری کہ تو وہاں پر موجود ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ یہ جو بہنوں کی عبادت ہے خداوند, تیرے لوگ, تیری بیٹیاں خداوند تیرے حضور اکٹھی ہوئی ہے. خداوند تو ان کو چھو خداوند, ایک ایک جان, ایک ایک روح, بڑے سے لے کر بوڑھے تک, بچے تک خداوند, ہر ایک کو چھو خداوند, ہر ایک روح تیری حضوری کو, تیرے پیار کو محسوس کرے خداوند. تو ان کی زندگیوں کو جانتا ہے خداوند, تو جانتا ہے خداوند کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت. خداوند تو جانتا ہے کہ کون سی بیماری جو ہے, کون کس بیماری سے اسٹرگل کر رہا ہے. اے خداوند آج ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اپنی بیٹیوں کو چھو, اپنے ایک ایک جان کو چھو جو وہاں پر موجود ہے. انٹرنیٹ کے لیے خداوند تو ہر ویو کو کلیئر کر دے یسوع کے نام میں خداوند. تیرا روح جنبش کرے خداوند, تیرا روح جنبش کرے جب تیری بندی آئے اور تیرے کلام کو تیری بہنوں, تیری بیٹیوں کے ساتھ شیئر کرے خداوند. تو خداوند تیرا روح جنبش کرے خداوند, ان کے ذہنوں کو کھول, ان کے دلوں کو تیار کر خداوند, تاکہ جب بیج بویا جائے تو وہ بیج 60 گنا 100 گنا بلکہ 1000 گنا پھل لے کر آئے خداوند. آئے خداوند اپنے بیٹیوں کو اپنی طرف بلا خداوند, ان کے ذہنوں کو تیار کر, اس پلیٹ فارم کو تیار کر, پاسٹرز کو, لیڈرز کو, ٹیچرز کو خداوند ہر ایک کو تیرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں خداوند. تیرا روح مانگ لیتے ہیں, تیرا رحم مانگ لیتے ہیں خداوند. ہمارے گناہوں کو, ہماری غلطیوں کو خداوند تو معاف کر خداوند. تیرے خون سے آئے خداوند ہمیں صاف اور پاک کر خداوند. تیرے رحم کو مانگ لیتے ہیں, تیری شفا کو مانگ لیتے ہیں. آئے خداوند تیری عقل کو مانگ لیتے ہیں خداوند. ذہنوں کو کھول یسوع مسیح کے نام میں خداوند. ہر ٹریڈیشنل بیریئر کو توڑ یسوع کے نام میں. ہاللویا. ہر ریلیجیس بیریئر کو توڑ یسوع کے نام میں خداوند. اور تیرے لوگ تجھ میں بڑھے اور پھلے اور تیری سچی حضوری کو محسوس کر سکے خداوند. نہ کہ صرف خداوند تیرے لوگ ادھر ادھر ڈسٹریکٹ رہے, بلکہ تجھے محسوس کر سکے خداوند. ہم یہاں پر تیرے لیے موجود ہے خداوند. تو اس وقت چیف گیسٹ ہے خداوند, اور کوئی نہیں بلکہ تو خداوند. یسوع کے نام میں خداوند تو اپنی بندی کو استعمال کر ان لوگوں میں خداوند, اور خداوند تیرا روح کام کرے. یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں, آمین آمین. میری سب سے درخواست ہے کہ اپنے ذہنوں کو کھولیں اور خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کریں, کیونکہ جو پاسٹر سرافین ہے وہ کافی دیر سے اس کلام کے لیے تیاری کر رہی ہیں, اور خدا نے آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا کلام ہے, اور آپ لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے خداوند آج یہاں پر موجود ہے. آمین.
तो आइए हम अपनी तालियों की गूंज में पास्टर सराफिन को वेलकम करेंगे। सब तशरीफ रखें। मैं आप सब की नहायत ही शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी वेलकम के लिए, आपके फूलों के लिए और आपकी इस खुशी के लिए जो आपने हमारे साथ की है, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं पास्टर नवाज का और मिसेस पास्टर अफिया का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसका सारा प्रोग्राम किया, बहनों को इकट्ठा किया, और उनकी सारी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो उसके साथ हैं। क्वायर का, बेटियों के लिए जिन्होंने खुदाम की प्रस्तश की, उन सब की मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इस सारी इबादत में अपना हिस्सा डाला है। खुदा आप सबको बरकत दे। हम आज एक दूसरे के लिए और यीशु मसीह के लिए एक दफा जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनमें मौजूद हूँ। आज हमारा यीशु चीफ गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद है। एक बार फिर जोरदार यीशु के लिए तालियां बजाएंगे। हालेलुया। मेरी आवाज सबको पहुंच रही है? आज हम खुदा के पाक कलाम में से लूका की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 43वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। अपनी सोचों को, अपने ख्याल को, अपने ध्यान को खुदा की तरफ लगाएंगे। आज अपनी जो घरेलू सोचे हैं उनको अभी हम नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आज खुदा के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो को करेंगे। तो खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकती थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, आए साहेब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर बरकत हो। आमीन। हाँ जी, मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मेरी आवाज को सुन सकते हैं। और इस कलाम को बयान करने से पहले, ये जो आज आपके सामने हवाला पढ़ा गया है, इस कलाम को आपने कई दफा सुना है। मुख्तलिफ पास्टर ने मुख्तलिफ तरीके से आपके सामने इस कलाम को बयान किया है, लेकिन मैं आज इस कलाम को बयान करने से पहले इस कहानी का जो बैकग्राउंड है, जो इस कहानी का पस मंजर है, वो थोड़ा बयान करूंगी। मेहरबानी करके उसको गौर से सुने, ताकि हम आज इस औरत के बारे में जो कहानी आपके सामने पढ़ी गई है कलाम मुकद्दस में से, उसको अच्छी तरह समझ सकें। मैं आज आपके सामने इस कहानी का पस मंजर, इसका बैकग्राउंड जो है थोड़ा बयान करूंगी कि ये जो औरत थी 12 बरस से बीमार थी, इसको 12 बरस से खून जारी था। इस तरह की जो नापाक औरतें होती थी वो अपने घरों में नहीं रहती थी। उनके लिए शरीयत के दौर में उनके लिए एक
जगह मुकर्रर होती थी और ये सारी औरतें वहां जाकर ऐसी औरतें रहती थीं और जब अपनी नुपाकी से अच्छी हो जाती थी, जब शिफा पा जाती थी, तो तब अपने घरों में आती थी। ये तो थी एक शरीयत की बात, पुरानी बात, लेकिन इस दौर में भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर अभी भी ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान में वादिये कलाश में मैंने एक दिन टेलीविजन पर एक स्टोरी देखी, तो उसमें एक आदमी उस औरत का इंटरव्यू कर रहा था। यूट्यूब पे मैंने वो प्रोग्राम देखा, तो वो बता रहा था कि यहाँ पर जब औरतें इस तरह नापाक होती हैं या बच्चा जनती हैं, तो वो इस जगह पर आ जाती हैं और इस जगह पर किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ औरतें वहां पर इकट्ठी होकर रहती हैं और वहां पर वो अपने लिए कुछ काम करती हैं, कोई स्वेटर बुनती है, कोई टोपियां बनाती हैं, इस तरह वो बता रहा था कि काम करती हैं। और उस लड़की ने बताया कि 5-6 दिन हम यहाँ पर रहती हैं, जब अच्छी हो जाती हैं तो फिर हम आ जाती हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया, बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। यीशु ने उस शरीयत को पूरा कर दिया। अब हम उससे आजाद हैं, अब हम आजादी के साथ अपने घरों में रह सकते हैं, खुदावंद का कलाम पढ़ सकते हैं, खुदावंद का दुआ कर सकते हैं हम, और आजादी के साथ जिंदगी बसर करते हैं। जब हम खुदावंद में पाक बनते हैं तो फिर हमारे पास आजादी है, हम जिस तरह भी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर हम यीशु में पाक हैं तो हमारे किरदार में, हमारे चलने फिरने में, हमारे उठने में, हमारी गुफ्तगू में यीशु को नजर आना चाहिए। ये थी उस औरत की स्टोरी बताने से पहले, कलाम को बयान करने से पहले, जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह ये औरतें रहती थीं। और ये औरत भी जिसकी स्टोरी हमने अभी खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ी है, ये औरत भी ऐसी ही जगह पर रह रही थी और अपना सारा माल, खुदावंद के पाक कलाम में हमने पढ़ा है कि उसने अपना सारा माल हकीमों में, डॉक्टरों में खर्च कर दिया था। जब हम बीमार होते हैं या परेशान होते हैं तो हम मुख्तलिफ डॉक्टर को आजमाते हैं, कभी भाग के किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि हम शिफा पा सकें, हम अच्छे हो जाएं। लेकिन उस औरत के बारे में लिखा है कि वो अपना सारा माल हकीमों में खर्च कर चुकी थी, लेकिन वो अच्छी नहीं हुई थी। उसका ईमान था कि मैं यीशु के पास जाऊंगी और अच्छी हो जाऊंगी। आज हम इस कलाम के मुताबिक, इस हवाला के मुताबिक 3 बातें देखेंगे: डर, ईमान और उम्मीद। डर, ईमान और उम्मीद। वो उस जगह से उसका निकलना बहुत मुश्किल था उस औरत का, लेकिन उसने डर को अपने अंदर नहीं रखा। वो वहां से निकली, वो उस सफर से वापस भी जा सकती थी, लेकिन वो डरी नहीं। उसको उम्मीद थी कि मैं यीशु के पास जाऊंगी और वो ही मुझे अच्छा कर सकता है। हालेलुया। वो यीशु के पास आने से अच्छी हो सकती थी। उसका ईमान था, उसकी उम्मीद थी कि मैं यीशु के पास जाऊंगी और उससे अच्छी हो जाऊंगी। वो रास्ते से मुड़ सकती थी। उसके अंदर अगर खौफ आ जाता, उसके अंदर डर आ जाता, तो वो पीछे मुड़ सकती थी, लेकिन वो नहीं मुड़ी। उसकी उम्मीद ने उसको आगे बढ़ाया और वो यीशु तक पहुंची। वो पता नहीं भीड़ में से छुप छुपा कर यीशु के पास आई। और एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि उसने क्यों कहा कि मैं यीशु की पोशाक छू लूंगी। इसलिए कि वो भीड़ में लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी। अगर वो वहां पर सामने आ जाती तो लोग उसको पहचान लेते और उसको वापस उस जगह पर भेज देते और उसको सजा देते। इसलिए उसने कहा था कि मैं यीशु की पोशाक छूंगी। उसने कहा था कि मैं भीड़ में से जाऊंगी और पीछे से यीशु की पोशाक को छू लूंगी और मैं अच्छी हो जाऊंगी। मेरे अजीजों, जब यीशु
की पोशाक को उसने छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। हम यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि यीशु में से ताकत निकली, कुव्वत निकली और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। उसका ईमान था कि मैं यीशु की पोशाक को छूने से अच्छी हो जाऊंगी। एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर वो किसी रबी की या किसी फरीसी की पोशाक को छूती तो वो अच्छी होने की बजाय उसको सजा देते। मेरे यीशु ने उसको जिंदगी दे दी, मेरे यीशु ने उसको शिफा दे दी, क्योंकि यीशु जिंदगी का चश्मा है। उसने यीशु की पोशाक छुई और उसी दम वो अच्छी हो गई। अगर वो किसी और के पास जाती तो वो उसको अच्छा ना करता, उसको सजा देता, लेकिन मेरे यीशु ने उसको जिंदगी दी। हालेलुया! यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि हमारा यीशु जिंदगी का चश्मा है। हालेलुया! और जब हम देखते हैं कि उसने शिफा हासिल की है तो यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। क्या कहा जी? मेरे पीछे बोले। यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। क्यों छुआ है? क्यों पता चला यीशु को? क्योंकि उसके अंदर से शिफा की कुव्वत निकली और उसके शागिर्द इनकार करने लगे कि यीशु तुझे कौन छू सकता है, लोग तेरे ऊपर गिरे पड़ते हैं, तुझे कौन छू सकता है? यीशु ने कहा नहीं, मुझे छुआ तो है किसी ने। और जब औरत ने देखा कि मैं अब छुप नहीं सकती, मैं अब अपनी बीमारी से तो शिफा पा गई हूँ, लेकिन अब मुझे इन लोगों के सामने आना ही पड़ेगा, तो फिर वो कांपती हुई, डरती हुई यीशु के कदमों में गिर पड़ी। वो डर इसलिए रही थी, वो कांप इसलिए रही थी कि शायद उसके शागिर्द मुझे बाहर निकाल दें, मुझे उस जगह पर भेज दें। लेकिन उस औरत ने यीशु के सामने अपना सारा हाल बयान कर दिया। हमने खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ा है कि उस औरत ने अपना सारा हाल यीशु के सामने बयान कर दिया। उसने कहा कि मैं इतने साल से बीमार थी, मैं इतनी साल से उम्मीद में थी कि मैं यीशु के पास जाऊंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। मैं अपना सारा माल हकीमों में खर्च कर चुकी हूँ, मैं अपना सारा माल डॉक्टरों को दे चुकी हूँ, लेकिन मैं किसी से अच्छी नहीं हुई थी। इसलिए यीशु, मैंने तेरी पोशाक का किनारा छुआ। उसका ईमान देखे कि उसने कहा कि मैं तेरी पोशाक का किनारा छू लूंगी, बस इतना सा हाथ लगाऊंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। ये उसका ईमान था। उसने यीशु की पोशाक को छुआ और उसने बताया कि यीशु, मैंने तेरी पोशाक को छुआ और मेरा खून बहना उसी दम बंद हो गया और मैं उसी दम अच्छी हो गई। और यीशु ने उससे कहा कि जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। जब हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होता है तो हम बड़ी बड़ी पहाड़ों को, मुश्किलात को, मुसीबतों को अपने से दूर कर सकते हैं। आज हमारे साथ पहाड़ कौन से हैं? आज हमारे सामने कौन सी मुश्किलात है? गुर्बत की मुश्किलात है, परेशानी की मुश्किलात है, बीमारियों की मुश्किलात है। वो यीशु हमारी से दूर करना चाहता है। अगर हमारे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है तो हम बड़े बड़े पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। इसी तरह उस औरत के अंदर भी ईमान था, उम्मीद थी। वो यीशु के पास आई और चंगी हो गई। उसने यीशु से शिफा को हासिल कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान के वजह से, अपने डर को दूर करने की वजह से, अपनी उम्मीद की वजह से उसने यीशु से शिफा को हासिल कर लिया। जब हम डरे रहते हैं, हम घबराए रहते हैं, हम लोगों में जाना पसंद नहीं करते, हम इबादत में जाना पसंद नहीं करते, हम खुदा के लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते, तो फिर हमारा खौफ जो है, हमारा डर जो है वो और बढ़ता रहता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे अंदर से जो डर है उसको निकालना है, अपनी उम्मीद को बढ़ाना है और अपने ईमान को बढ़ाना है, ताकि हम उस औरत की तरह अपनी शिफा को हासिल कर सके। अभी हम खुदा के पाक कलाम में से एक और हवाला पढ़ेंगे ईमान के बारे में। मरकस की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 24 आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मेरे साथ सब निकाले। मरकस की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 24 आयत।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। वो तुमको मिल गया और वो मिल जाएगा। हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो। जो कुछ का मतलब है कि जितनी भी दरख्वास्तें, जितनी भी इल्तिजाएं हम खुदा के हुजूर में रखते हैं, जब हम एक दफा खुदा से मांग लेते हैं तो फिर हमें यकीन करना है कि वो हमें मिल गया और वो हमें मिल जाएगा। और जाएगा का जो वक्त है उसको हमने ईमान के साथ गुजारना है। उसमें शक नहीं आने देना, उसमें डर नहीं आने देना। जब हमारे अंदर शक आ जाएगा, जब डर आ जाएगा, तो जो दरख्वास्त हमने खुदा उनसे की है वो पूरी नहीं होगी या उसमें ज्यादा देर लग जाएगी। मेरे अजीजों, हमें ईमान के साथ वो वक्त गुजारना है। मैं यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि अगर हम बिजली अपने घर में लगवाने के लिए उसकी दरख्वास्त जब हम वापडा के हाउस में भेजते हैं, तो एक दफा हम दरख्वास्त दे देते हैं, बार बार हम ना तो दरख्वास्त देते हैं और ना ही हम वहां पे फोन करके उनको बोलते हैं कि भाई हमारा मीटर अभी तक क्यों नहीं लगा, या हम उनको तंग नहीं करते। इसी तरह जब हम यीशु के पास अपनी दरख्वास्त एक दफा भेज देते हैं तो फिर हमें उस पे शक नहीं करना। हमने जब एक दफा मांग लिया है तो ईमान के साथ उस वक्त को गुजारे कि खुदा ने हमें वो दे दिया है। हम खुदा के पाक कलाम में से एक और हवाला देखेंगे, रोमियो की अंजील, उसका रोमियो 15 बाब उसकी 13 आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। रोमियो 15 बाब उसकी 13 आयत। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुद्दस की कुदरत में तुम्हारी उम्मीद ज्यादा हो जाए। ताकि रूह कुद्दस की कुदरत में तुम्हारी उम्मीद ज्यादा हो जाए। आमीन। जब हम खुदावंद में उम्मीद रखते हैं, कि ईमान रखते हैं, तो हमारी उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है, हमारी तवक्कुआत ज्यादा हो जाती हैं। जब हम एक दफा ईमान के साथ दुआ करते हैं तो खुदावंद हमारी दुआ सुन लेता है। अगर हम उसमें शक नहीं करते तो हमारी उम्मीद और ज्यादा खुदावंद पर बढ़ जाती है। इसलिए खुदावंद का बंदा यहाँ पर कह रहा है कि हमारी उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। खुदावंद जिंदगी का चश्मा है, उसके पास इत्मीनान है, उसके पास अब्दी खुशी है। उस औरत की तरह हमें भी यस्सु के पास आने की जरूरत है। उसने यस्सु की पोशाक का किनारा छुआ और उसका ईमान बढ़ गया, उसने शिफा पाली और उसने अब्दी जिंदगी पाली, क्योंकि यस्सु मसीह के पास अब्दी जिंदगी है। वो अब्दी खुशी देने की कुदरत रखता है। हम उसके पास आएं और हमेशा उसके साथ जुड़े रहें। अपनी तंगियों में, अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलात में हमें हमेशा खुदावंद के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ गई है या कोई परेशानी आ गई है तो हम यस्सु को छोड़ दें, उससे पीछे हट जाएं। नहीं, यस्सु तो हमारी दुआ को नहीं सुनता, हमें जवाब नहीं देता। नहीं मेरी अजीज बहनों, हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि अपनी उम्मीद को बनाए रखना है, अपनी उम्मीद को और ज्यादा बढ़ाना है, ताकि यीशु मसीह हमें अब्दी खुशी दे, अब्दी इत्मीनान दे। हमें 3 वक्त खुदा के हुजूर में झुकने की जरूरत है, हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें कलाम पढ़ने की जरूरत है। जब हम अपने घरों में, खासकर जो बहनें हैं, मैं आज उनसे ही कलाम कर रही हूँ और उनसे बात करूंगी कि हम जो औरतें हैं वो अपने घर में एक रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। जिस तरह एक पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर रीढ़ की हड्डी पर होता है, इसी तरह हम भी अपने घर में एक रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। जब हम अपने खानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देता है, खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, खुदावंद हमें जवाब देता है। कहते हैं कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। हालेलुया। आप सब इस बात को जानते हैं ना
कि हर मर्द के पीछे, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो औरतें क्या करती हैं? हम औरतों को ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी चाहिए। अपने खामदों के लिए दुआ करें, अपनी मुश्किलात के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें। इस बेदीनी के दौर में जब बड़ी हफड़ा तफरी पड़ी हुई है, इब्लीस ने बहुत ज्यादा जोर डाला हुआ है, खासकर नौजवान नस्ल के लिए दुआ करें। बहनें अपने बेटों के लिए दुआ करें, अपनी बेटियों के लिए दुआ करें, ताकि उनकी बेटियां खुदावंद में मसरूफ हो जाएं, उनके बेटे कामयाब हो जाएं। जब हम दुआ करते हैं कि मेरा बेटा, ईमान के साथ दुआ करते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी पायलट बनेगी, तो जरूर ऐसा होगा, क्योंकि हमने ईमान के साथ मांग लिया यीशु से। अगर हम अपने बच्चों के लिए बुरी बातें करेंगे, ये दूसरे लोगों में बैठता है, ये गलत है, ये सुस्त है, ये पढ़ता नहीं है, तो फिर वो ऐसा ही होगा। हमें अपनी जुबान से अपने बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए पॉजिटिव अल्फाज बोलने हैं, ताकि हमारा खानदान, हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारा मोहल्ला तरक्की करे, हमारा मसीही कौम के बच्चे तरक्की करें, वो आगे बढ़े, ना कि वो पढ़ाई से भाग जाएं, बल्कि अपने बच्चों के लिए दुआ करें ताकि आपके बच्चे कामयाब और सरफराज हों। आज इस ईमान को, उम्मीद को साथ लेकर जाएं कि हमारे ईमान में और ज्यादा पुख्तगी आ जाएगी। आज के बाद हमारी उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उस औरत ने यीशु की पोशाक छूने से हमेशा की जिंदगी हासिल कर ली है। आज हमें भी यीशु के पास आने से अब्दी जिंदगी हासिल करने की जरूरत है, और अपनी जिंदगियों से उस डर को, उस खौफ को निकाल कर जाएं। आज से वो डर जो है आपकी जिंदगी में, जो खौफ है, उसको निकाल दें और ईमान रखें, उम्मीद रखें। यीशु सबको कामयाब करने की कुदरत रखता है, बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है। वो आज यहाँ पर मौजूद है। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे ईमान को और ज्यादा बढ़ा दे, हमारी उम्मीद को और ज्यादा बढ़ा दे। हमें बीमारियों के डर को निकाल देना है, हमें बेरोजगारी के डर को निकाल देना है, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। सब सर खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएंगे, और मैं पास्टर परवेज को भी दावत दूंगी कि वो हमारे साथ आएंगे और हम मिलकर आप सबके लिए दुआ करेंगे। Praise Lord. हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी हालेलुया की आवाज नहीं आ रही मुझे। इंज लगता इंज लगने जी यहाँ ते थक गए जे, इंज लगता यहाँ ते थक गए ते यहाँ भुख लगी तुहानू बहुती। बड़ी कमजोरी महसूस हो रही तुहानू, और ना तालियां ते ना हालेलुया। जोरदार एक दफा खुदावंद यीशु ले और पाक रूली तालियां बजाओ। आमीन। सो आज का कलाम मेरे लिए, आपके लिए बहुत बाइस बरकत था, और मैं समझता हूं कि खुदावंद का रूह जब मौजूद होता है तो खुदा अपने लोगों में काम करता है, खुदा अपने लोगों को बरकत देता है, और मैं ईमान रखता हूं कि आप सब ने बरकत पाई है इस कलाम के वसीला से। आमीन, आमीन। और आप सबको पास्टर साहब ने बता दिया है कि औरत जो है वो एक रीढ़ की हड्डी है अपने खानदान में। अगर आप दुआ गो हैं, अगर आप दुआ करने वाले हैं, तो आपके बच्चे दुआ करने वाले हैं, आपका खामद दुआ करने वाला है। अगर खामद भटका हुआ है तो आप उसके लिए दुआ करें। आप शाम को हर रोज दुआ के लिए बैठे अपने बच्चों को लेकर, ताकि जब आपका घर का मालिक, आपका खामद आए तो वो भी आपके साथ बैठे। और अगर औरत दुआ नहीं करती, औरत स्पिरिचुअल नहीं है, तो शायद बच्चे भी स्पिरिचुअल नहीं होंगे। इसलिए अपने खानदानों को खुदा के पास लाने के लिए, खुदा के साथ चलाने के लिए, अपने घर में बरकत के लिए आप दुआ करें और खुदा उनके साथ वफादारी से चलें, तो खुदा आपको और आपके घराने को बड़ी कसरत से बरकत देगा। आमीन, आमीन। एक और छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा कि जैसे पासाबा ने कहा कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है,
तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे तजर्बे होंगे। और मैं एक जीती जाती मिसाल हूं, जागती मिसाल हूं कि मुझे खिदमत में लाने के लिए मेरी बीवी थी, और आज अगर पास्टर हूं, इंटरनेशनल तौर पर खुदा की खिदमत कर रहा हूं, तो अपनी बीवी की वजह से। आमीन। इसलिए अपने आप को स्पिरिचुअल बनाएं, खुदा के साथ चलाएं, खुदा के साथ वफादारी से चले, और हर रोज दुआ में बैठे। जैसे उन्होंने कहा कि 3 दफा नहीं तो 2 दफा तो दुआ जरूर करें, ताकि खुदा के साथ आपकी मुलाकात, खुदा के साथ आपकी रफाकत हर रोज बढ़ती रहे, और उसके साथ आपके ताल्लुक और रिलेशन मजबूत हो जाए। आइए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। मैं पास्टर साहब के लिए, उनकी बीवी के लिए, और तमाम टीम के लिए जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उनके लिए खुदा का शुक्र करता हूं। और आप में से जो बहनें बीमार हैं, जो बहनें अपने आप को कमजोर महसूस करती हैं, किसी दर्द में, तकलीफ में महसूस करती हैं, या रूहानी तौर पर वो बेदार नहीं है, रूहानी तौर पर खुदा से दूर हैं, आज अपने आप को खुदा के हाथ में दे दें। खुदा उनका रूह आपको छूने वाला है, खुदा उनका रूह आपको शफा देने जा रहा है, खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, आपकी जिंदगी तब्दील होने जा रही है यीशु के नाम में। आमीन। आइए हम दुआ करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और खुदा उनके रूह को दावत दें, खुदा उनके रूह को अपनी जिंदगी में आने के लिए वेलकम करें, क्योंकि खुदा उनका रूह आपको छूने जा रहा है, खुदा आपको शफा देने जा रहा है। और इस इबादत के बाद आप एक नई जिंदगी लेकर जाएंगे, इस इबादत के बाद आप एक नई स्पिरिट लेकर जाएंगे, इस इबादत के बाद अपनी बीमारियों से रिहाई और अपनी मुश्किलात से रिहाई पाके जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। आइए दुआ करें। खुदाए जुलजलाल, खुदाए कद्दूस, ऐ बरोबर के खालिक और मालिक है, जलाल के और कमाल के बादशाह, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे लोगों के लिए जिन्होंने ईमान के साथ अपने हाथ बढ़ाए हैं तेरी तरफ। खुदा इन हाथों को थाम ले, जिन जिस्मों में बीमारी है, तकलीफ है, दर्द है, यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त हुक्म देता हूँ, सारी बीमारियों को, सारी कमजोरियों को, बदरूहों को और तमाम तरह के इब्लीस की गंदी तासीरों को यीशु के नाम से छोड़ यीशु के नाम से रिलीज कर अभी और इसी वक्त, क्योंकि ये बदन यीशु के हैं, ये जिस्म यीशु के हैं, यीशु के खून खरीदे हैं। कलाम में लिखा है तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए अपने बदनों से खुदा उनका जलाल तार करो। तमाम जोड़ों की दर्दें यीशु के नाम से जाती रहे, तमाम शुगर यीशु के नाम से जाती रहे, तमाम तरह के कैंसर, तमाम तरह की बीमारियां और हर तरह की कमजोरियां और तमाम तरह के ब्लड प्रेशर की बीमारी और तमाम तरह की बुखार यीशु के नाम से आज अभी और इसी वक्त छोड़ दें यीशु मसीह के नाम से। और तमाम तरह की औरतों की बीमारियां, तमाम तरह की बदनी कमजोरियां, जिस तरह यीशु की पोशाक छू के उस 12 वर्ष की बीमार औरत ने शफा पाई, आज ये सारी औरतें जो अपने अंदर कमजोरी महसूस करती हैं, बीमारी महसूस करती हैं, आज यीशु के नाम से रिलीज हो जाए, इसी वक्त रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तू छू रहा है, आए पाक रूह तू छू रहा है, एक एक पर तेरा मसा ठहरा हुआ है और खुदा तेरा आसमान खुला हुआ है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, खुदा तूने छुआ है। फिर दोबारा मैं कमांड करता हूं, हुक्म देता हूं गंदी तासीरों को, बदरूहों को जो बीमारियां पैदा करती हैं, वो गुर्बत की बदरू, वो बीमारियों की बदरू, वो बेरोजगारी की बदरू, वो तमाम तरह की गंदी तासीरें जो तेरे लोगों के लिए परेशानियां पैदा करती हैं, आज यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि छोड़ दे सारी बीमारियों, सारी गंदी तासीरें छोड़ दे इन बदनों को, और ये अपने घरों में खुशी लेकर जाएं, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर जाएं, ताकि तेरे बेटियां, तेरे बेटे, तेरे लोग बरकत पाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तूने छुआ, बरकत दी और शफा दी है। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन।